everyone, today I will be discussing about determiners. Definition क्या है? Determiners are noun modifiers. They are placed just before a noun to give additional information of it. Determinants noun के modifiers होते हैं या ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में नाउन यानी कि संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी संख्या या मात्रा की बात हो रही है। चूँकि यह भी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, इसलिए ये भी एडजेक्टिव या विशेषण कहलाते हैं। डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश आर्टिकल्स कौन कौन से हुए? ए एंड द, दिस, दैट, these, those, my, our, your, his, her, its, their, few, little, much, many, a lot of, some, any, enough, 1, 10, 30, all, both, half, either, neither, each, every, first, second, next, last, previous, etc. For example, I have read this book. This is a very useful book. I can answer all questions. Both answers are right. This man is very tall. That building was used for specific purpose. These sums are really very hard. Those beds are not in good condition. Note: use of some and any according to the following. Affirmative sentence, it means positive sentence or use some. Negative sentence, it means using any or not in the sentence. Interrogative sentence, use any questions. ठीक है. Now अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में और क्या आ रहा है. नोबडी, नो वन, नथिंग, नो, बेयर, नेवर, हाइट, neither nor. Use any if the real sense of the sentence is negative. Scarcely, hardly, rarely, barely एंड नेवर. ये सारे हम यूज़ किस में करते हैं? जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें. ठीक है. ये वाला सेंटेंस हमने क्या यूज़ किया था? इंट्रोगेटिव में. यूज सम इन द क्वेश्चन टू द एक्सपेक्टेड आंसर इफ इज़ यस और नो. यूज सम इज़ ऑफर एंड रिक्वेस्ट. ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसके. I have given him some money to buy chocolate. I have not given him any money to spend. Have you given him any money? Have you given him some money? He says you have. Can I have some tea please? Would you give me some more time to think? क्वेश्चन मार्क लगा है सब में. ठीक है. He denied having any involvement in the crime. I doubt there is any money in his bank account. She refused to share any information with his. The teacher forbade us to ask any question. The teachers allow us to ask some question. He seldom get any extra money to spend. She has hardly any friend in this school. Some and any. ठीक है. सम यानी कि कुछ, any यानी कि ना के बराबर. Some and any are used with countable and uncountable noun to describe an indefinite or incomplete क्वांटिटी. ठीक है. अनिश्चित और अधूरी मात्रा तथा संख्या का वर्णन करने के लिए सम और एनी का प्रयोग किया जाता है. सम और एनी का प्रयोग गणनीय और अगणनीय संख्या से पहले किया जाता है. सम इज़ यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट. सम का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है. जैसे आई हैड सम राइस फॉर लंच. ही is got some books from the library. It is also used in question where we are sure about the answer. Didn't he give you some tea? Did she buy some books? Think she died. Some is used in situation where the question is not a requested for information but a method of making a request, encouraging or giving on invitation. सम का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिसमें रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस या ऑफर का भाव हो. Could I have some books please? Why don't you take some book home with you? Would you like some books? Any is used in question and with not in negative sentence. Any का प्रयोग नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों को किया जाता है. जैसे Have you got any tea? He didn't give me any tea. I don't think we have got any books. More example, अतिरिक्त उदाहरण. Some in positive sentence. Some का प्रयोग सकारात्मक वाक्यों में. ठीक है. I will have some news next week. She has some valuable books in her house. Some in question. Some का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में जो ऑफर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेशन का बोध कराए. Would you give like some
हेल्प, विल यू हैव सम मोर टी कॉफ़ी. एनी इन नेगेटिव सेंटेंस. एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में होता है. शी डज नॉट वॉन्ट एनी किचन अप्लायंसेस फॉर क्रिसमस. दे डोंट वॉन्ट एनी हेल्प मूविंग इन दियर न्यू हाउस. एनी इन इंटोग्रेटिव सेंटेंस. एनी का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में. डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन लंदन. हैव दे गोट एनी चिल्ड्रन. नॉट वन. किसी भी, कोई भी के अर्थ में एनी का प्रयोग होता है. यू कैन गेट एन ऑटो रिक्शा एट ओनली एनी रेलवे स्टेशन. एनी बॉल विथ विल डू इट्स वर्क. यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू एनी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास. नॉट टू. इफ़ क्लॉज वाले सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है. इफ़ यू मिस योर वे यू आस्क एनी बडी. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू मी. इफ़ यू हैव एनी सिम्टम्स ऑफ COVID-19 quarantine yourself. Much. Now use of much. Much means a lot of. It is used with uncountable noun. much का अर्थ अधिक होता है, लेकिन मात्रा में much का प्रयोग अगणनीय, जिसको गिना नहीं जा सकता संख्या के साथ प्रयोग किया जाता है. much का प्रयोग गणनीय संज्ञा के साथ नहीं किया जाता. There is not much food in the house. I don't have much free time. You always give me too much trouble. Note, use of much and many according to the following table. Affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. Use a lot of, lots of and plenty of. Use many and much. Use many and much. Use many and much with so, to and as. Example, we have so much time. We have lot of time. I have met so many friends at college. I have made a lot of friends at college. He made a lot of mistakes in the test. Therefore, he did not get good marks. There are a lot of plenty of job opportunity in big cities. He gave us too many tasks to accomplish in a short time. I read as many books as I could. Now move to many. मैनी इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स. मैनी का अर्थ अनेक होता है, लेकिन संख्या में मैनी का प्रयोग गणनीय संख्या के साथ किया जाता है, अगणनीय संख्या के साथ नहीं. मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पार्क टुडे. नाउ ही वॉज द अमंग द मैनी विजिटर्स टू द साइट. अमंग हिज मैनी fault is self-importance. Many a and n. Many a and n is used with singular countable noun and singular verb. Many a and n का प्रयोग एक वचन गणनीय संख्या तथा एक वचन क्रिया के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे many a player is playing cricket in the field now. Many a man was killed in the First World War. Many an apple is eaten by Rohan. Many is a girl is not interested in this. By using little it show quantity. ठीक है, यानी कि मात्रा. लिटिल टेक्स अनकाउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब विथ इट. लिटिल के साथ अगणनीय संज्ञा और एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है. लिटिल यह न के बराबर मात्रा को दर्शाता है. इट शोज very small quantity. It denotes negative sentence. Little has a rather negative meaning. It means hardly and is hardly any. Example, with a little patient you will be able to solve all your problems. Please give them a little some time to make them sleep comfortable. You have become weak. You should pay a little some more attention to your health. A little knowledge is dangerous thing. The little, not much but all this is available. जो कुछ भी हो वह सारा. Example, I have lost the little energy I had. The little money that he earns is not enough to meet his expenses. Do you wish me to use the little water I serve for honey? Few, if it show number. Few is used with plural noun and takes plural verb. It show a very small number. Negligible या ना के बराबर. अपर्याप्त, it denotes negative sense. Example, how can we arrange a get together in this pandemic situation? Few will come for such a program. I am sorry, I have few friends. The box is nearly empty. There are few apples in it. He is not popular at all. Few people know him. A few का मतलब these expressions show the speaker's attitude towards the number he she is referring to a small number. some संख्या से
में थोड़े कुछ, a few for countable noun. Describe the number in positive way. Example, I have only a few minutes to answer this question. There were only a few people in the bowl at that time. I do have a few books of communication skills. The few, not many, but all that are available. जो भी थोड़े बहुत है वो सभी. Now move. Example, the few things that he bought were of no use. The few students who come yesterday were not able to answer this question. Some spent the few rupees which she found in the wallet. Each and every, both each and every go before a singular countable noun and singular verb. each और every का प्रयोग एक वचन की संख्या और एक वचन की क्रिया के साथ होता है. use of each is used for two or more things. if we use each for more things, we see them only one by one. use का प्रयोग every is used for three or more things. when we use every, we see things correctly, not determinants. each, every ये क्या है? singular noun. ठीक है. Example, every book is important. 5 boys are standing here. Each boy is wearing white shirt. There were houses on each side of the road. In Japan, children are taught to write with each hand. Each half of the earth is called a hemisphere. I know each and every student in the class. The Lok Sabha election are held every 5 years. Every boy is reading his book. I have only 2 pens, but each pen writes well. I visit my parents every 2 weeks. Note, pronoun. each of, every, one of. Plural noun plus singular verb. Plural pronoun plus singular verb. ठीक है. each of the books is important. Every one of the student of his class has been assigned a homework. Each of the boys was intelligent. Everyone, each of us, everyone या each of us में से एक आएगा, should do his work. each and both. each is used with singular countable noun. both is used with plural noun. Example, there were houses on both sides of the road. There were houses on each side of the road. In Japan, children are taught to write with both hands. Either, neither. Either in positive sense, neither is negative sense. We can use either and neither when we have only two things in mind. They can't be used when we talk about more than two things. Both, either or neither are used with singular countable noun when used as determiners. ठीक है. either और neither, singular noun plus singular verb, either or neither. plural noun plus singular verb, plural noun plus singular verb. Now move to the example. Either box can be used. Neither box is empty. Either of the box contained sweets. Neither of the box was empty. Neither or none. Neither is used to talk about two things. None is used to talk about more than two things. Example क्या है? Neither of the two student has applied for admission. None of the student got a chance to speak. Certain and uncertain. Certain इसमें निश्चित और असर्टेन यानी कि अनिश्चित. सर्टेन इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. सर्टेन का प्रयोग बहुवचन की संख्या और अगणनीय संख्या के साथ किया जाता है. असर्टेन इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. असर्टेन का प्रयोग एक वचन गणनीय संख्या के साथ किया जाता है. एग्जाम्पल, सर्टेन बॉयज ऑफ These class will come up with surprising result. She always goes for a certain shop if she wishes to buy something. There was a certain man whose name I don't remember. Such is used with plural noun and uncountable noun. Such का प्रयोग बहुवचन की संख्या तथा अगणनीय संख्या के साथ किया जाता है. Such, a and n. It is used when with singular countable noun. Such, a and n का प्रयोग एक वचन गणनीय संख्या के साथ किया जाता है. एग्जाम्पल क्या है? Such books are very useful. How can I take such lemonade? Will you read such a novel? All, both and several. All, both, several indicates towards plural. All, both sentence, several sentence बहुवचन की ओर इंगित करते हैं. और एक जैसी दो
या बहुत सारी वस्तुएं, सारी चीज़ों के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। बोथ एक जैसी दो वस्तुओं के लिए प्रयोग में किया जाता है। सर्वल अलग अलग अनेक वस्तुओं के लिए प्रयोग में किया जाता है। एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द बॉयज़ ऑफ दिस कॉलेज हैव पास्ड विथ वेरी गुड मार्क्स, बोथ आर प्लेयर्स हैव डन वेल इन द गेम, सर्वल वेरियस बुक्स आर स्क्रॉल्ड ऑन द टेबल। आर्टिकल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ए एन द। ठीक है, आर्टिकल्स को हम वर्ड फिक्सर भी कहते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल एक प्रकार के डिटरमिनर्स है। ये किसी नाउन से पूर्व एंटीसेडेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित, ए एन वन या एनी, इनका प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल, सुशांत sing a song, I have a car। डेफिनेट आर्टिकल, द का प्रयोग उस नाउन के पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में की जाती है। द का इसलिए डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द को इसलिए डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज़ द हाउस वेयर शी लिव्स, द बॉय इज़ ब्लैक शर्ट इन माई सन। ए एंड एन का प्रयोग, जिन शब्द के पूर्व ए एन का प्रयोग करना है उसे शब्द का प्रोनाउंसिएशन को प्रथम ध्वनि यानी स्वर तो उससे पूर्व एन का प्रयोग करें, अन्यथा ए का प्रयोग करें। यह महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक अक्षर जो स्वर वाउल से शुरू हो, जरूरी नहीं कि सबसे पहले हमेशा एन का प्रयोग ही रहेगा। अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ ईव इत्यादि। अतः ए एंड एन का प्रयोग के लिए प्रोनाउंसिएशन को पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ शब्द का एब्रीवेशन यदि एम एन एफ एक्स एल एस एच आदि से शुरू हो रहा है तो भी उच्चारण की प्रथम ध्वनि वाउल ही होती है। अतः शब्दों से पूर्व एन का प्रयोग करें। एन एन सी सी, एन एल सी डी, एन एस एच ओ, एन एफ आई आर, एन यू आई डी नंबर, एन यूनेस्को डेलीगेट। ठीक है, कुछ उदाहरण, एन आर्स, एन ऑनर्स, एन हायर, एंड यूनिसेफ डेलीगेट एटसेट्रा। रूल 3, यदि किसी भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के लिए किया जाता है तो उससे पूर्व ए एंड एन का प्रयोग करें। एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी इज़ अ हिटलर सैड सम स्टूडेंट ऑफ JNU। दिवीज इज़ अ सचिन तेंदुलकर। अमित इज़ अ कौटिल्य। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, वाक्यों में वाट के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए एंड एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, वॉट अ प्रीटी गर्ल, वॉट अ क्रिकेटर, वॉट अ परफॉर्मर्स। किसी जाति विशेष, रूल 5 है, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर नाउन के पूर्व ए एंड एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, अ काउ इज़ एन एनिमल, एन ईगल इज़ अ बर्ड। प्रति माह या प्रति वस्तु का मत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, मनाली अर्न्स रेट्स 1000 अ मंथ, माई कार रन्स 100 किलोमीटर एन आवर। रूल 7, जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह होता है तो उससे पहले एन ए का प्रयोग आता है। जैसे, आई हैव ग्रेट लव फॉर हर। अनकाउंटेबल, प्यार और प्रेम, शी इज़ एन ओल्ड वुमेन, लव ऑफ माइंड। काउंटेबल, प्रेमी प्रेमिका, दिस इज़ अ लैम्प। काउंटेबल, देयर इज़ लैम्प इन द मेन्यू। अनकाउंटेबल। रूल 8 क्या बोलता है? टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ टेम्पर, टू हैव अ पेन। मतलब जल्दी में या आपको टेम्पर में या पेन में, हेडेक में, फीवर में। टू हैव अ माइंड, टू हैव एन आई, टू मेक अ नोइज, टू टेक लिंकिंग टू टेक फैंसी टू हैव अ लिंकिंग वीकनेस, टेस्ट फॉर अ रन अ टेम्परेचर, टू हैव अ कोल्ड, टू कैच कोल्ड और अ कोल्ड, टू मेक अ फायर। दर, नाप, तोल, गति सूचक शब्दों से पहले ए एन एन इस प्रकार आता है। वीट सेल्स 2 रुपीज़ अ किलो, ही इज़ alvaring at 40 किलोमीटर एन आवर, ही अर्न्स 5 रुपीज़ अ डे, his salary is 600 रुपीज़ अ मंथ। जब एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तब सिर्फ एक ही के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, पर यदि अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो उनमें से प्रत्येक के पहले आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए। जैसे, a red and blue pencil, a red and a blue pencil
a poet and thinker, a poet and a thinker. डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल है, इसका प्रयोग छात्रों द्वारा बिना सोचे समझे बहुतायत में किया जाता है। द का उचित प्रयोग इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों को द का प्रयोग सावधानीपूर्वक समझना चाहिए। यूज़ ऑफ द, इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। द को इसलिए डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है। एग्जाम्पल, रोहन फाउंड अ पर्स, द पर्स contained a note, the note was made of silver. Divya bought a silk sari, the sari is very unique. वाक्य में पर्स से पूर्व सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया है, बाद में द का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह पर्स पूर्व निर्धारित निश्चित हो गया है। इसी तरह नोट से पहले ए का प्रयोग किया गया है, बाद में द का प्रयोग क्योंकि नोट पूर्व निर्धारित निश्चित हो चुका है। इसी तरह वाक्य फर्स्ट में पहले सारी से पूर्व ए तथा बाद में द का प्रयोग किया गया है। अन्य उदाहरण देखें। एग्जाम्पल, दिस इज द कॉलोनी वेयर हर्षिता लिव्स। The man is blue dress is my brother. The tall man standing near your father is a minister. यहाँ द का प्रयोग एक निश्चित निर्धारित नाउन को व्यक्त करता है। रूल 13, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए। एग्जाम्पल, द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। रूल 14, जब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन करना हो व्यक्त या कंपैरिजन व्यक्त हो तो द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, करण इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, दिस इज द बेटर ऑफ द टू पोएम। शरीर के अंगों पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पूर्व द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, अंकुश वाज वाउंडेड इन द आर्म, गोविंद हिट जॉनी इन द हेड। लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तो उससे पहले द नहीं लगता है। एग्जाम्पल, नेहा इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज़ अ मोस्ट यूजफुल नॉवल। सिंगुलर नाउन के पूर्व में जब द का प्रयोग किया जाता है तो उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल, द टाइगर इज़ अ फाइसर एनिमल्स, द डॉग इज़ अ फैथफुल एनिमल। रूल 18, धार्मिक समुदाय के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज, अखबार के नाम, महत्वपूर्ण भावनाओं के नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम आदि के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द गोदावरी, द सतलज, द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, द इंटरसिटी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द बीजेपी, द कांग्रेस, the Communist Party, the Boeing, the Vikrant, the Bay of Bengal, the Gulf of Mexico, the Taj Mahal, the Red Fort, the French Revolution, the Quiet India Movement, the Hindustan Times, the Indian Express। रूल 19, जो वस्तुएं यूनिक है उससे पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एट्सेट्रा। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, द सन सेट इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, गो टू हेल, नॉट द, गॉड्स रिसाइड इन हेवन, मंजुलिका विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट। धार्मिक ग्रंथों के नाम से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द भगवद गीता। एग्जाम्पल, द रामायण इज अ sacred book, the Quran is also sacred book। लेकिन वाल्मीकि रामायण, बाणभट्ट, कादम्बरी जैसी स्थिति में इनके पूर्व द नहीं लगाया जाता। रूल 21, व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, द मीटिंग वाज प्रेसाइड्स over by the executive director, this decision is taken by the prime minister। nationality, राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। the English defeated the French, the Indian cricket team has won the match। रूल 23, किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एग्जेक्टिव उसी नाउन में
क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, जैसे द ग्रेट नेपोलियन, द वॉरियर एटसेट्रा। रूल 24, ऑर्डिनल से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डिनल्स द तथा 1, 2, 3 कोऑर्डिनल्स कहलाते हैं। द 10th चैप्टर ऑफ द दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्रियांश इज़ द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी आविष्कार इन्वेंशन के नाम से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। उत्पला कैन प्ले द टेबल violin, trumpet. Who invented the telephone, telescope? Go to cinema, go to the theatre में सिनेमा एवं थिएटर से पूर्व द लगता है। संजय went to the cinema yesterday. रिया इज़ गोइंग टू थिएटर विथ महेश। द का प्रयोग कंट्री के नाम से पूर्व नहीं होता है, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स जुड़े हुए हैं, जैसे द का प्रयोग इससे पूर्व किया जाता है, जैसे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डोमिनियन रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम एटसेट्रा। राकेश विजिटेड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट। दे वॉन्ट टू कनाडा एंड द यूनाइटेड किंगडम। रूल 28, द का प्रयोग प्लूरल नेम ऑफ कंट्री, आइलैंड, माउंटेन, पर्सन के साथ होता है, जैसे द नीदरलैंड, द लक्षद्वीप आइलैंड, द फिलीपींस, द एंडीज, द एल्प्स, द हिमालयाज, द जॉनसन, the Raymonds, etc. 29 रूल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया है तो द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह नॉर्थन, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पूर्व द नहीं आता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, गॉर्धन इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, राजस्थान इज वेस्टर्न इंडिया, स्वीडन इज इन नॉर्थर्न यूरोप। रूल 30, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी द का प्रयोग उचित है, यदि ये काउंटेबल नाउन की भांति प्रयुक्त किए जाए। ध्यान दें कि जब अनकाउंटेबल नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन इन और ऑफ आता है तब ये निश्चित काउंटेबल हो जाते हैं, तो इसलिए इससे पहले द आता है, जैसे Kalidas is Shakespeare of India. The coal of Indira is of good quality. The prosperity of country depends upon the citizen. The beauty of Kashmir is praiseworthy. The plus adjective, it denotes whole class. Adjective से पहले the article लगने से पूर्व जाति का बोध होता है। The rich should help the poor. The rich are not always happy. Plural noun and article. यदि countable noun plural हो तो article का प्रयोग नहीं होता। Plural noun से पहले a and n का प्रयोग तो कभी भी हो नहीं सकता। the का प्रयोग नहीं होता यदि वह indefinite, अनिश्चित हो। Dog bark, cow give us, यहाँ dog और cow ये खास dog and cow का बोध नहीं होता, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध है। The dog bark at night, the cow gave us milk. नोट, यदि किसी प्लूरल नाउन से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो द का प्रयोग उचित है, जैसे द डॉग ऑफ दिस प्लेस आर ब्लैक, द काउस ऑफ राम गिव मिल्क, मैन आर गुड, द मैन ऑफ इंडिया आर गॉड, बुक्स आर यूजफुल, द बुक्स ऑफ राम आर यूजफुल। नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग छात्रों को बहुत सावधानी से करना चाहिए। नीचे दी गई परिस्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। खाने के नाम जैसे लंच, डिनर, सफ़र, ब्रेकफास्ट से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं किया जाता। सोनालिका couldn't have breakfast this morning. Riya was invited to dinner. I had lunch at 1 PM. लेकिन यदि खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो या खाना पर्टिकुलर हो गया हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। वैशाली अरेंज्ड अ नाइस डिनर। द डिनर हॉस्टेड बाय द क्वीन वाज सुपर्ब। बीमारियां, डिजीज़ के नाम से पूर्व सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं लगता है। रोमियो इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही डाइड ऑफ कोविड-19। रूल 35, भाषा के नाम, रंग के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश। रोनाल्डो टेक्स ब्लू एंड वाइट कलर। लेकिन यदि कलर का नाम एक एडजेक्टिव की तरह किसी काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होता है तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बबीता हैज़ अ ब्लू साड़ी,
आई हैव अ रेड पेन। विषयों सब्जेक्ट के नाम से पूर्व सामान्यतः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे एग्जाम्पल, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मीनाक्षी इज लर्निंग फ्रेंच। आई सिक्योर्ड 88% मार्क्स इन इंग्लिश। इशिका इज गुड एट फिजिक्स। रूल 37, काइंड ऑफ के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट वॉज, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज। रूल 38, कुछ ऐसे फ्रेजेस जिसमें प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे एट हैंड, बाय नेम, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, इन जेल, एट डिनर, अंडरग्राउंड, इन जैज, बाय वाटर, ऑन horseback, at sunset, in depth, in hand, all day, all night, at noon, at night, by post, etc. रूल 39, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग्स या इमोशन का कथन की तरह व्यक्त नहीं किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वर्च्यू हैज़ इट्स ऑन रिवॉर्ड। लेकिन यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु का क्वालिटीज़ से संबंध स्थापित किया जाए तो उसके पूर्व आर्टिकल नहीं लगता है। सौमित पजेज द स्टीफनेस ऑफ अ टाइगर। निहारिका हैज़ द कनिंगनेस ऑफ फॉक्स। रूल 40, जब कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है तो उससे पूर्व आर्टिकल नहीं लगता है। डॉग इज एन इंटेलिजेंट एनिमल्स, बर्ड्स फ्लाई, फिश लिव इन वाटर, काउस ईट ग्रास। सामान्यतः प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह हो तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। आगरा इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी। मैहुल इज़ द कोहली ऑफ आवर कॉलेज। मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ मैनचेस्टर एवं कोहली का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है। रूल 42, गेम्स के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। दिविराज प्लेज गोल्फ, राहुल प्लेज क्रिकेट। रूल 43, सीजन के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता है। इन स्प्रिंग वी लाइक टू क्लीन द हाउस। डेविड इज प्लेइंग टू visit his parents in winter. Some important example: incorrect sentence and this one is correct sentence. Never tell lie, never tell a lie, always speak truth, always speak the truth. It is a 7:30 by my watch. It is 7:30 by my watch. It is 5:15 now. It is a 5:15 now. I am in hurry. I am in a hurry. You are in wrong. You are in the wrong. I read Indian Express daily. I read the Indian Express daily. The English is spoken by English. The English is spoken by English. The man is mortal. Man is mortal. He is honest boy. He is an honest boy. Kavita is best girl in class. Kavita is the best girl in the class. His brother is MP. His brother is an MP. Here is an umbrella. Here is an umbrella. He has headache. He has a headache. It is time to take the tea. It is time to take tea. A red and white cow are grazing. A red and a white cow are grazing. In next class we will discuss about tense.